Classification of elements, modern periodic classification, modern periodic table. So modern periodic table is based on modern periodic law given by Morse and Moseley. Correct? According to modern periodic law, physical and chemical properties of elements, लिखिए, physical and chemical properties of elements are the periodic function of atomic number. So this is the new thing, atomic number. Atomic number, उल्टा आ रहा है क्या? हाँ, सही है. Atomic number of element is the number of proton in the nucleus or number of electron outside the nucleus. Correct? Atomic number is the number of proton inside the nucleus or number of electron outside the nucleus. And these electron and proton, am I audible, student? Tell you. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Yes, Hardik sir. Sharma. Join all of you. Neha Gochar. Give your attendance. Yes, sir. Okay, very good. So this is called modern periodic law. If you compare modern periodic law and Mendele's periodic law, so what is the difference between these two? Any one of you can tell what is the difference between these two? Neha Gochar, Megha Dubedi, you tell what is the difference between modern periodic law and Mendele's periodic law? Tell me. Aditi Joshi. The difference is only this, that modern periodic law use atomic number and Mendele's periodic law use atomic mass. Correct? Now I discuss with you why atomic number is more appropriate to determine the properties of elements, because atomic number reflects the number of proton and number of electron present in the atom, and number of electron is the particle, electron is the particle which decides the properties of element. That's why atomic number is more appropriate to determine the properties of element, or you can say properties of elements is more based on atomic number rather than atomic mass. So according to this modern periodic law, modern periodic table was developed by so many scientists, and present modern periodic table is called long form of periodic table. Correct? टाइम पर क्या हुआ, इसमें करेक्शन होते गए, तो अल्टीमेटली it is called modern periodic law, a long form of periodic law, but in the beginning it was designed by Niels Bohr. Correct? So this modern periodic table, you try to learn it. Correct? I will tell you how will you learn it. One important thing, this modern periodic table has 18 vertical column. So, गिनते जाओ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और तो इधर ले लेते हैं, इधर आएगा 18। हो गया? दिख गया? ये दिख रहा है? ये थोड़ा नहीं दिख रहा है तो इसको इधर कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, तभी आ जाएगा ये। अब इट इज क्लियर, करेक्ट? नाउ वी नंबर इट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. You number it. So there are vertical column. First important point to write down, और इसको साथ साथ बनाते भी रहिए आप. On separate page you also write. There are 18 vertical columns in modern periodic table, and these 18 vertical columns are called group. So there are 18 groups. Correct? अब Mendeleev periodic table में क्या था? 1 to 7 groups are further divided into 2 subgroups A and B, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. और 18 ग्रुप डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स मेंडली में था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. तो इसमें सब अलग अलग हैं 1 to 18. एंड देर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज. ये भी लिख लो आप. 1, दिस इज 1 रो हो गया फर्स्ट पीरियड. फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, 7 रोज. सो ये इतने टोटल 7 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रोज हैं. These horizontal rows are called period. Horizontal rows are called period. इसको आगे बढ़ा दो. So correct. 7, ये जो ड्राइंग आप बना रहे हैं, ये पेंसिल से बनाना आप, क्योंकि मिटाना ही पड़ेगा आपको. करेक्ट? तो यू ड्रा इट विथ पेंसिल. करेक्ट? ड्रा इट विथ पेंसिल. नाउ तो ये लिखिए सेकंड पॉइंट. देर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड. So there are 7 period, and it is similar to Mendeleev's periodic table, because in Mendeleev's periodic table also there are 7 period. Correct? चलिए आगे आ जाइए. First period there are 2 elements, hydrogen and helium. फर्स्ट में. सेकेंड पीरियड 8 एलिमेंट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन. बोरॉन इधर आ जाएगा 13 में. बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन. करेक्ट? तो दिस बोरॉन, अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? यू हैव टू लर्न बाय एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम 2, एटॉमिक नंबर लिथियम 3, एटॉमिक नंबर बेरिलियम 4, एटॉमिक नंबर बोरॉन 5,
Carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9, neon 10. Then sodium 11, magnesium 12, फिर 13, एल्युमिनियम 14, सिलिकॉन 15, फास्फोरस 16, सल्फर 17, क्लोरीन और आर्गन 18। फिर इधर आएगा पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, कैल्शियम बाद आएगा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36, हीलियम, नियॉन, ऑरन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अब इसको कर लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टीएल। अब इसको आ जाओ, पूरा कर लो ग्रुप 1 को। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ग्रुप 2 का कर लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। अब यहाँ 21 का लिख दो आप, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ठीक है ना, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। और जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, एयू, पैलेडियम, प्लेटिनम, रोडियम, इरिडियम, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, रहनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, वैनेडियम, टैंटलम, स्कैंडियम, इटेरियम, एंथ्रम, जिरकोनियम, आरएफ। ये पीरियोडिक टेबल है स्टूडेंट्स। अब इसको शेप देने के लिए, क्योंकि यहां पर कोई नहीं, तो इसे मिटा दो, ये सारा बीच का सिस्टम मिटा दो आप पेंसिल से, और ये भी मिटा दो। अब जो आउटलाइन है उसको थोड़ा सा डार्क करके बना देंगे हम। ये आउटलाइन है इसकी, करेक्ट स्टूडेंट्स? So students, these are the modern periodic table. Just now I have draw it, and I also suggest you, advise you to learn this. Now I
net connection disrupted. So again, it is going to resume. Now I think all of you are okay and you are listening me. Am I audible or not? Tell someone of you. Speak. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So Anushka Varwal, Shreya Rai, Shruti Yadav, give your attendance. Aditi Joshi, Sohani Gupta, Yes, sir. Monica Kumari, Yes, sir. Harshita Shakya, Yes, sir. Hardik Soni, Subhalakshmi Misra, Yes, sir. Aditya, Yes, sir. Adish Garg. Yes, sir. Okay, ठीक है. So you are listening. Now I am telling you the very, very important thing, how you to learn this periodic table by heart. Because just now you have seen, I draw it as such. So I hope that you can also draw it. You have to practice 2-3 times. First I will put this number. We put this number here close to the group so that it become easily audible. Group number 1, group number 2, group number 3, group number 4, group number 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Correct? So students, if we want to mug up, we want to learn this table, this for first group. हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए. ग्रुप 3. स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम. ऐसी बाई ला 1. टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम. तिजोरी हाफ रख. वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम. वेनेप्टा, आइसक्रीम का नाम है वेनेप्टा. क्रोमियम Cr, मोलिब्डेनम और टंगस्टन W. वन क्रोमोव और मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेनियम. ये TC है. इसे TC, टेक्नीशियम और ये रेनियम. मनटेक्रे और ये आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, फेरुओश, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम. और निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, पिट. तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ऐसे याद हो जाएगा आपको. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कॉइनेज मेटल है. जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये भी याद हो जाएगा. अब ग्रुप 13. बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. बैगन, आलू, गाजर इन थैला. 14. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. कौनसी गंगा शिव प्रभु. ग्रुप 15. नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. नाना पापा आंसू सब बीमार. 16. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. ओ स्टाइल से टीपो. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन. 80. फिर कल बाहर आई आंटी. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. हरिराम ने आराम किया, जीनॉन रोया. अब इनके एटॉमिक नंबर लिख देते हैं पूरे. 36 था लिखे हुए, तो 36 के बाद हो जाएगा 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 54 के बाद यहाँ 55, 56, 57 लेंथेनम 57 के बाद 14 नीचे आ जाते हैं एफ ब्लॉक लेंथेनाइट्स यहाँ से आते हैं 57। तो 14 एलिमेंट होते हैं 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68 और 69, 70, 71। यहाँ से आपको आएगा 71 मतलब 57 में 14 जोड़ दो आप 71। तो 71 तक तो इधर आ जाएंगे तो 72 आएगा 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 करेक्ट। मतलब ये 80 आएगा, ये 79 आएगा, ये 78 आएगा, ये 77 आएगा, ये 76 आएगा, ये 75 आएगा, ये 74 आएगा, ये 73 आएगा, ये 72 आएगा। ठीक है ना। तो 72 तो 72 57 के बाद 72 आएगा ना। 57 से 71 तक लेंथेनाइट्स हैं ग्रुप 4, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है करेक्ट। तो ये आपका 80 के बाद 81, 82, 83, 84, 85, 86 रेडॉन, फिर 87 फ्रांशियम, 88, फिर यहाँ 89 एक्टिनियम है, फिर यहाँ पर एक्टिनाइट्स आएंगे 14 एक्टिनाइट्स आएंगे। 89 में 14 जोड़ दो 89 प्लस 14 103 ठीक है ना। तो 103 बाद 104 आएगा ठीक है ना बस। तो ये आपके एटॉमिक नंबर याद रख के यू हैव टू लर्न दिस टेबल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्टूडेंट। तो टुडे I will, if you have any doubt you ask about the modern periodic table. So about the description of modern periodic table, the 2-3 important point, that there are total 18 group and there are 7 periods. In first period 2 elements, in second period 8 elements, in third period 8 elements, in fourth, fifth period 18 elements, in sixth period 32 elements, in seventh period 23 या 24 एलिमेंट और यू कैन से 19 एलिमेंट के लगभग है, क्योंकि इसके आगे का भी कुछ बुक्स में दिया है कुछ में नहीं दिया है। आपकी बुक में दे दिया है तो आप याद कर सकते हैं, रेदरफोर्डियम, डर्बियम, सेगेरियम, लेकिन यहाँ तक तो क्लियर है आपका ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर पीरियड, दिस आल्सो यू हैव टू लर्न प्रॉपरली। अभी नेक्स्ट पार्ट आता है आपका पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो इसको मैं यही से समझाता हूं आपको। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स in periodic table. Position of element in periodic table, if you want to calculate position, so one very important thing I will tell you, that this modern periodic table based on electronic configuration. First 2 element group are called S block element. 13 to 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, these 6 group are called P block element. This is called group 3 to 12 are called D block element, and नीचे ये 2 हैं lanthanide and actinide, these are F block element. So this modern periodic table is divided into 4 blocks: S block, P block, D block, F block. Correct? So we want to know the position. First we write the configuration.
Suppose we want to know the position of sodium. Sodium configuration 281. तो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्रुप नंबर होगा, करेक्ट, पर एस ब्लॉक के लिए। जैसे 1 है तो 1 फर्स्ट ग्रुप होगा। अगर हम मैग्नीशियम का लिखना चाहें 282 तो 2 है 2 होगा, ठीक है ना। अब अगर हम बोरॉन का लिखना चाहें इधर, बोरॉन 5 है, 2 उसके बाद 3, तो आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या करेंगे हम, जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है पी ब्लॉक के केस में, उसमें हम जोड़ेंगे 10 हर एक में, तो 10 + 3 13, तो ग्रुप नंबर आ जाएगा 13। अगर सपोज ऑक्सीजन का है या सल्फर का, देखो सल्फर 286, 16 होते हैं ना, 286 6 है, 6 में 10 जोड़ देंगे तो ग्रुप 16 आ जाएगा पी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक में क्या है, इसका निकालना तुम्हारा कठिन में है, तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है ये। वैसे इसके लिए हम एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन। फिर डी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 2 ऐड करेंगे और उसका ग्रुप नंबर आ जाएगा। जैसे एक सिंपल मैं आपको बताता हूं, स्कैंडियम, स्कैंडियम में क्या है कॉन्फ़िगरेशन, आपका आर्गन कॉमन ले लो 18, फिर आपका आएगा 4s2 और 3d1। तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 जोड़ देंगे ये वाले, तो 2 + 1 3, ये 3 आ जाएगा। एस के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किए जाएंगे। दिस वे यू कैन फाइंड आउट द ग्रुप। नाउ हाउ यू विल फाइंड आउट द पीरियड। पीरियड कैसे निकालेंगे, ऐसे शेल निकालेंगे, जैसे सोडियम 1 2 3, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो थर्ड पीरियड हो गया 1 2 3। मैग्नीशियम 1 2 3 थर्ड शेल में हो गया। बोरॉन 1 2 2 शेल थे तो सेकंड पीरियड हो गया। सल्फर 1 2 3 3 शेल थे, थर्ड शेल में हो गया। इसलिए अभी आपके कोर्स में तो आप केवल 20 तक करिए याद, 20 तक, up to 20 you have to learn and you have to understand what is the position of element in periodic table. So this is about the modern periodic table and its description. Students, now in the next turn I will start your doubt. If you have any doubt, you make it note what are the doubt. You can ask in the next time, otherwise I will start the exercise. Okay student, thank you. So now leave the class. If you have any doubt, you can ask, otherwise you leave the class. Okay student, thank you.